جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو ہماری ڈیزائرز ہیں یا یہ جو ہمارے ڈریمز ہیں ان کو ہم نے کیسے پورا کرنا ہے. اس کے لیے ہم کوئی لاہ عمل نہیں بناتے, اس کے لیے ہم کوئی پلاننگ نہیں کرتے, اس کے لیے کوئی ہم اپنا پلیٹ فارم ایسا نہیں چوز کرتے جس میں ہمارے اس لیول کے خواب یا خواہشات جو بھی ہماری ہوتی ہیں وہ پوری ہو سکے. ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے, ہم نے خواب بڑے بڑے سجائے ہوتے ہیں, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے, میں نے یہ بننا ہے, لیکن اکارڈنگ اپنے ڈریمز کے ہم وہ کچھ کر نہیں رہے ہوتے پریکٹیکل. پھر ہم کیسے اپنے ڈریمز کو اچیو کر سکتے ہیں, پھر کیسے ہم اپنے وہ خواب پورے کر سکتے ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں. ہم بچپن میں ہوتے ہیں تو ہمارے بہت بڑے خواب ہوتے ہیں, ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں خواب چھوٹے ہوتے جاتے ہیں. کبھی نوٹ کیا ہے, بچپن میں ہماری بڑی خواہشات ہوتی ہیں, ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں خواہشات کم ہوتی جاتی ہیں. اس کی وجہ کبھی نوٹ کی ہے, اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ سمپل سی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے جتنے بڑے خواب سجائے ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جب ہمارے وہ پورے نہیں ہوتے یا ہمیں اس لیول کا پلیٹ فارم نہیں ملتا یا ہماری اس طرح کی پلاننگ نہیں ہوتی یا ہمارا کوئی اتنا اس لیول کا سورس آف انکم نہیں ہوتا, تو سورس آف انکم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے وہ خواب پورے نہیں کر پاتے, ڈیزائر پوری نہیں کر پاتے. پوری کرنا تو دور کی بات, ہمیں وہ پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے ہوتے. فار ایگزامپل کوئی بندہ چاہتا ہے کہ یار میرے پاس اعلیٰ قسم کی گاڑی ہو, V8 ہو, میرے پاس اچھا بہترین گھر ہو, میرے پاس اچھا بینک بیلنس ہو, تو ڈیفینیٹلی اس کو اس لیول کی پلاننگ بھی تو چاہیے ہوگی, کوئی پلیٹ فارم بھی تو چاہیے ہوگا, سورس آف انکم بھی تو چاہیے ہوگا. اب وہ اس کے پاس ہے نہیں, تو اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو بہت مشکل ہے, پاسبل نہیں, یا پھر وہ خواب تو لے کے گھوم رہا ہوتا ہے. تو آپ نے ڈیفینیٹلی اس نے اپنی نیڈز بھی پوری کرنی ہے, سوشل جس سرکل میں وہ رہتا ہے وہ بھی معاملات اس نے چلانے ہیں. اب وہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے اس کی بڑی مشکل سے اپنی نیڈز پوری ہو رہی ہوتی ہے, یا اس کے جو اپنے روٹین روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں بڑی مشکل سے وہ چلا رہا ہوتا ہے. پھر جب وہ کیلکولیٹ کرتا ہے تو اس کو ایک بہت بڑا ایک پہاڑ نظر آتا ہے, اس کو ایک بہت بڑا گیپ بیچ میں نظر آتا ہے اپنے ڈریمز میں اور اپنے سورس آف انکم میں. اپنی پاکٹ اور اپنے ڈریمز کے بیچ میں بہت بڑا اس کو ایک گیپ نظر آتا ہے, جس کی وجہ سے ایسا ایسا ان کے ڈریمز کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا چھوٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, یا بہت سے لوگوں کے تو ایسے ایسے ڈریمز مرجھا جاتے ہیں, ڈریمز دم توڑ جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ جو ڈریمز ہوتے ہیں ان کی ایک اپنی پاور ہوتی ہے, ان کی اپنی ایک انرجی ہوتی ہے. ڈریم جو ہے, جو خواب ہوتے ہیں, یہ کوئی غلط بات نہیں, بری بات نہیں, بلکہ بہت اچھی بات ہے. اس کی وجہ کیا ہے, یہ ڈریمز جو ہوتے ہیں یہ آپ کو انرجیٹک رکھتے ہیں, آپ کو انرجی دیتے ہیں, آپ چارج رہتے ہیں. اسے کیسے چارج رہتے ہیں؟ دیکھیں اگر فار ایگزامپل آپ کا کوئی بھی ڈریم ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یار آپ کے پاس گاڑی ہو, اب آپ کو یہ خواب پورا کرنے کے لیے صاف ظاہر ہے آپ نے کچھ نہ کچھ تو ایسا کرنا ہے جس سے آپ کم از کم اپنا یہ خواب پورا کر سکیں. یا آپ کے پیرنٹس میں سے کسی نے یہ خواہش ظاہر کر دی ہے کہ ہمیں کو آپ حج کروائیں یا ہمیں آپ عمرہ کروائیں, تو جب یہ ڈیزائر آئے گی ان کی طرف سے تو آپ کے اندر ایک مطلب ایک خواہش پیدا ہوگی, ایک برننگ ڈیزائر آئے گی, ایک جو ہے آپ کے اندر ایک عجیب سی ایک انرجی آئے گی. کیونکہ بہت سے لوگ ڈیفینیٹلی ہر شخص اپنے پیرنٹس سے محبت کرتا ہے, ایموشنلی اٹیچ ہوتا ہے, ہونا بھی چاہیے. تو جب آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یار مجھے والدہ یا والد نے یہ خواہش کی ہے مجھ سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ بھئی بیٹا میں یہ چاہتا ہوں, میری یہ زندگی کی خواہش ہے کہ کاش میں جو ہے حج کر لوں. اب آپ کے بس میں نہیں ہوگا, اگر تو آپ افورڈ کرتے ہوئے تو آپ کہیں گے اوکے ٹھیک ہے, نہیں تو آپ اپنی لائف میں سب سے بڑا جو ڈریم آپ بنائیں گے پھر وہی بنا لیں گے. یہ سب سے پہلے تو میں نے اپنے پیرنٹس کو حج کروانا ہے, اس کے بعد میں نے کچھ اور کرنا. اب دیکھیں یہ بڑی پازیٹیو تھنگ ہے, چیز ہے. اب آپ اس کو اچیو کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی رائٹ لیفٹ دیکھیں گے, کچھ سوچیں گے, کچھ پلان کریں گے, کچھ ایکشن کریں گے, اور کچھ اپنا سورس آف انکم بنائیں گے تاکہ میں اپنے والدین کی یہ خواہش پوری کر سکوں. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اپنے ذاتی پرسنلی ڈریمز ہوتے ہیں, ڈریمز بھی ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ صرف پیسے کے ہی ڈریم ہو.
हमारे यहाँ ज्यादातर जो डेफिनेशन होती है ड्रीम्स की, वो पैसे के साथ उसको रिलेट किया जाता है। यार देखिए, सेल्फ ग्रूमिंग भी एक ड्रीम में आता है। कौन शख्स नहीं चाहता कि यार वो उसकी एक मतलब मुआशरे में इज्जत हो, रिस्पेक्ट हो, लोग उसको अच्छे अल्फाज में याद करें, लोग उसकी तारीफ करें, वो सामने ना भी हो तो लोग अपनी महफिलों में उनकी तारीफ करें, हर शख्स चाहता है। लेकिन साफ ज़ाहिर है ऐसा करने के लिए कुछ ना कुछ आपको बनना पड़ता है, आपको कुछ परफॉर्म करना पड़ता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ता है, तब लोग आपका नाम लेते हैं अपनी महफिलों में, तब लोग आपकी तारीफ करते हैं, अदरवाइज तो लोग बैक बाइटिंग करते हैं। जब तक आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होगा तब तक लोग आपकी तारीफ नहीं करेंगे। अच्छा, कौन शख्स नहीं चाहता कि यार मैं किसी जगह पे डिलीवर करूं, परफॉर्म करूं, लोग मुझे सुने, लोग मुझे देखें और मेरी ट्रेनिंग लेने के बाद हशश करें, या मेरी ट्रेनिंग्स के बाद लोग ऐसी स्ट्रॉन्ग फीडबैक दें। हर शख्स चाहता है। ये भी तो लाइफ का एक ड्रीम हो सकता है। अब ये ड्रीम पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा ड्रीम जो आपके फाइनेंस के साथ रिलेट करता है, और एक ऐसा ड्रीम जो आपकी सेल्फ वर्किंग या सेल्फ इंप्रूवमेंट के साथ रिलेट करता है। नो डाउट ये दोनों आपके इख्तियार में है, लेकिन अब इन दोनों को अचीव करने के लिए आपको डिफरेंट स्ट्रेटेजीज अपनाना पड़ेगी। अब जो भी शख्स जो भी ख्वाब लेके घूम रहा है, या जो भी शख्स जो कुछ भी चाहता है, नो डाउट वो डिफरेंट किस्म के होंगे, उनकी डिफरेंट प्लानिंग्स होंगी, उनके डिफरेंट एक्शन प्लान्स होंगे, और वो डिफरेंट तरीकों से अचीव किए जा सकते हैं। लेकिन आपको अगर जब बेसिक फार्मूला इसका समझ आ जाए तो फिर आपके लिए कोई भी ख्वाब पूरा करना मेरा ख्याल है कोई इम्पॉसिबल नहीं रहता। कोई भी ख्वाब पूरा करना आपके लिए भी इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये चीज समझना जो है जरूरी है कि यार आप जो ख्वाब देख रहे हैं उस ख्वाब की इंपॉर्टेंस क्या है आपकी लाइफ। वो ख्वाब आपका इंडिविजुअली है, या आप उस ख्वाब से बाकी लोगों को मुस्तफीज कर सकते हैं, या ये जो ख्वाब आपने देखा है या जो आप अपने मन में अपने दिल में सजाए बैठे हैं, इसका पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है, ये ख्वाब देखने की वजह क्या है। अगर ये ख्वाब आप पूरा करते हैं तो क्या आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे, उसके बाद आपकी स्ट्रगल खत्म हो जाएगी, या इससे सिर्फ आपकी जात को फायदा होगा, या आपका ये जो ड्रीम होगा ये और भी बहुत से लोगों को फायदा पहुंचाएगा। ये बेसिक चीजें होती है ये देखने के लिए। जो लोग मेच्योर होते हैं, जो लोग अपनी लाइफ को सीरियस लेते हैं, संजीदा लेते हैं, तो वो फिर ये सारी चीजों को नोट करके चलते हैं। देखिए, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, ऐसे नहीं, ख्वाब की अपनी एक एनर्जी है, ताकत है, पावर है, लेकिन ऐसा ही नहीं है कि यार जो दिल में आए वो ख्वाब सजा लो। ख्वाब भी आप कैलकुलेटेड ख्वाब रखो, ख्वाब भी आपके ऐसे होने चाहिए जो आपको एनर्जी दे, और ख्वाब भी आपके ऐसे होने चाहिए जिससे ना सिर्फ आपकी अपनी लाइफ बदले बल्कि आप और भी बहुत से लोगों की लाइफ बदल सके। इस तरह के अपने ख्वाब सजाएं जिसमें कम से कम आप किसी और को भी फायदा पहुंचा सके। और जो ख्वाब होता है ना, वो कहते हैं जिसका ख्वाब होता है ना पूरा भी वही करता है, जिसका ख्वाब होता है ना मेहनत भी वही करता है। अब जब आपने मेहनत करनी भी है, कोई भी ख्वाब आप सजाएंगे तो उसके लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगी ना। तो क्यों ना ऐसे ही ख्वाब पहले सजाएं जिसमें आप अपने आप को भी सिक्योर कर सको और अपने साथ और भी बहुत से लोगों को सिक्योर कर सको। और ये जो ख्वाब होगा फिर ये आपको एनर्जेटिक रखेगा, और यही आपको एनर्जी देगा, और यही आपको काम के लिए वो चार्ज करके रखेगा। फिर आपके लिए जो है आपको कोई एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत नहीं, यही फिर आपका विजन बन जाते हैं। और इस तरह के ख्वाब रखें आप जो आपको आपके विजन को सपोर्ट करें। भले छोटे छोटे ख्वाब हो, लेकिन वो आखिर उनकी जो उनका एंड जो हो, आपका जो ड्रीम का जो एंड हो, वो आपके विजन को जाके टच करे। आपकी जो मतलब मंजिल का एक जो हुसूल होना चाहिए आपका, वो कम से कम आपके विजन को जाके टच करे। आपके विजन और आपके ड्रीम्स के अंदर कोई किसी किस्म का डिफरेंस ना हो, ये दोनों सेम पाथ पे हो, दोनों सेम डायरेक्शन में हो।
ताकि आपके लिए आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना, आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत ना पेश हो। आपको आप जब भी मतलब सोचें तो आप एनर्जेटिक हो बिल्कुल, कि यार ये मैंने ख्वाब पूरा किया तो मैं मजीद अपनी डेस्टिनेशन के करीब हो जाऊंगा, मैं अपने विजन पे चल रहा हूं और यही मेरा विजन है, यही मेरे विजन की भी डायरेक्शन होगी। अपने आप को डायरेक्शन देना सीखें, अपनी लाइफ का मकसद बनाएंगे तो तब ये कुछ कर पाएंगे। हमारे यहाँ ज्यादातर क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता हमने करना क्या है, हम किधर जा रहे हैं, हमारी लाइफ का मकसद क्या है, या हम अपने आप को ना तो कोई कैलकुलेट करते हैं न मेजर करते हैं। बस हम ये देख रहे होते हैं गर्मियां आ गई हैं, अब सर्दियां आ गई हैं, गर्मियों का ड्रेस लेना है, सर्दियों का लेना है, गर्मियों से कैसे बचना है, सर्दियों से कैसे बचना है। तो हमारे यहाँ ये सीन चल रहा होता है। हम ये नहीं देखते कि ये जो हमारे यहाँ सीजन चेंज हो रहे होते हैं, ये जो सीजन गुजरा है, इस सीजन में मैंने क्या किया, मैंने अपनी जात के अंदर क्या इंप्रूवमेंट लाई, मैंने अपने अंदर कितना बदलाव लाया, और मैं पहले से ज्यादा कितना मैंने अपने आप को इंप्रूव किया, मैं पहले से कितना आगे, कितने स्टेप आगे गया हूं लाइफ में। ये सबसे बड़ी खाम ख्याली होती है। बल्कि ये इवन के हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इस चीज का अंदाजा ही नहीं होता, ना वो इस चीज पे ध्यान देते हैं, ना फोकस करते हैं। सबसे पहले तो आपने अपनी लाइफ में जो भी आपने ख्वाब मतलब सजाए हैं, उनका पर्पस होना जरूरी है, और आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वैलिड रीजन हो, एक वैलिड पर्पस हो आपके पास आपके ड्रीम का। फिर उसके बाद आपको वो ड्रीम अचीव करने में भी मजा आएगा, और फिर आपको कोई हेजिटेशन भी नहीं होगी, ना आपको कोई परेशानी होगी। फिर आप जो सक्सेस हासिल करेंगे या वो जो ड्रीम पूरे करेंगे, लोग फिर आपसे क्वेश्चंस करेंगे कि आपने कैसे सब कुछ कर लिया। क्योंकि देखिए, जब आप कुछ भी करने की ठान लेते हैं ना, फिर ये हो ही नहीं सकता कि वो हो ना सके, ये तो कंफर्म बात है। लेकिन हम ये तो जरूर एक दफा तो अपने दिल में तहिया कर लेते हैं, ठान तो लेते हैं कि भाई मैंने ये करना है और मैं तो ये लाजमी करूंगा। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं, जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, वहां पे हमारी एनर्जीज जवाब दे जाती हैं, वहां पे फिर हमारे हौसले जवाब दे जाते हैं, हौसले पस्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर हम थोड़ी स्ट्रगल करते हैं। स्ट्रगल करने के बाद फिर हम वहां पे डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं। फिर जहां से हमने सफर स्टार्ट किया था, फिर दोबारा से वापस होकर उधर ही पहुंच जाते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास कुछ वैलिड रीजन ही नहीं होती, और हम अपने ड्रीम्स को अपनी नीड्स नहीं बनाते। हमेशा याद रखिएगा, जो लोग अपने ख्वाब पूरा करना चाहते हैं, अपने ख्वाब अगर कोई भी शख्स चाहता है पूरे करना, तो वो आज से ही मेरी ये बात नोट कर ले, लिख लें। आप अपने ख्वाब को, अपने ड्रीम को अपनी नीड बना लें, जरूरत बना लें कि ये मेरी जरूरत है। और जो जरूरत होती है इंसान की, वो इंसान जैसे तैसे करके पूरी कर ही लेता है। अब देखिए, हमारी जो रूटीन की जो जरूरियात है, जो हम डेली बेस पे अपनी जरूरियात पूरी करते हैं, तो वो हमने प्रायोरिटीज पे नहीं रखी होती। देखिए, हमने डेली खाना खाना है, तो हम जैसे तैसे करके उसका अरेंजमेंट कर ही लेते हैं, फिर बाकी सारी चीजों को हम बैकएंड पे कर देते हैं, इनको हम प्रायोरिटीज पे ले आते हैं। तो आप अपने ड्रीम्स को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर लेकर आए, और प्रायोरिटीज लिस्ट में आप तब लेकर आ सकते हैं जब आप उनको अपनी नीड बना लेंगे, अपनी जरूरत बना लेंगे। अब ये तमाम चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। सबसे पहले तो आपने जो ड्रीम देखना, मतलब जिस भी ड्रीम को लेके चलना है, जो भी आपने अपना ख्वाब पूरा करना है, तो उसका एक तो आपके पास वैलिड पर्पस होना जरूरी है, उसका वैलिड पर्पस मकसद होना जरूरी है। इसके साथ साथ वो आपके विजन की मतलब डायरेक्शन में हो, आपकी जो भी एक मतलब आपने एक जिंदगी का मकसद बनाया है या जो भी गोल बनाया है, आपका ड्रीम, आपका गोल सेम डायरेक्शन में हो, ताकि आपको मजीद एनर्जी मिले, आपको परेशानी ना हो इस बात की कि भाई मैंने ये किया तो फिर मुझे अपनी कोई फील्ड चेंज करनी पड़ेगी, या फिर मुझे कुछ और करना पड़ेगा, या फिर मुझे कुछ नए सिरे से जीरो से करना पड़ेगा। तो ये चीजें सब एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है, सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसके बाद जो भी आपका मतलब ख्वाब होता है, उसका एक पर्पस हो। पर्पस
जो है उसका वैलिड हो, उसके बाद फिर आप अपना गोल सेट करें। गोल आप जो बनाते हैं तो गोल भी ऐसे कोई भी अचीव नहीं होता, उसके लिए फिर आपके पास उसकी भी प्लानिंग होना जरूरी है, और आपके पास प्रॉपर प्लानिंग हो। ऐसा ना हो बस एक दिन माइंड में कुछ सोच लिया, बस ठीक है बस प्लानिंग बन गई, ऐसे कभी भी आपके ख्वाब नहीं पूरे होंगे, ऐसे कभी भी आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। आपके पास सब कुछ रिटन फॉर्म में हो, आपके माइंड में स्केच बना हो, कभी भी किसी भी टाइम कोई भी आपसे पूछे तो आपके पास, आपको ऐसे फिंगर टिप पे वो याद होना चाहिए सब कुछ। आपका रोड मैप क्या है, उसका एक्शन प्लान क्या है, कब कैसे आपने वो अचीव करना है, इस सब प्लानिंग आपके पास हो, आपके माइंड में भी हो और रिटन फॉर्म में पेपर पे भी आपके पास राइट डाउन हो, तब आप अचीव कर सकते हैं। और ये जो बातें हैं या ये जो काम है, ये कौन लोग करते हैं? जो अपनी लाइफ के साथ सिंसियर होते हैं, जिनको अपने टाइम की कदर होती है। क्योंकि अगर आप ये सब कुछ नहीं करेंगे, आप बस ऐसे ही कहेंगे यार ठीक है किसी न किसी दिन तो हो ही जाएगा, तो फिर आप कभी भी एनर्जेटिक होकर वो काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता होगा यार कभी भी कर लूंगा, अभी बहुत टाइम पड़ा है, अभी चले ये भी कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, वो आपकी प्रायोरिटीज लिस्ट में आ ही नहीं सकता, वो आपकी सेकेंडरी या थर्ड प्रायोरिटी में चला जाएगा। क्यों? कि जो आपकी नीड्स या बाकी होंगे तो वो आप कर लेंगे। इसलिए सबसे पहले तो आपको चाहिए कि आपने जो भी अपना ख्वाब सजाया है, साथ कोई ना कोई जो भी गोल बनाया है, अब उस गोल को आप एक दिन में तो अचीव करने से रहे, एक दिन में तो वो पॉसिबल ही नहीं, आपने तो स्टेप बाय स्टेप करना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप किसी भी गोल या ख्वाब को अचीव करने के लिए आपके पास उसका रोड मैप होना जरूरी है। आपको पता हो कि ये मैं कैसे कैसे जाके कर सकता हूँ, कितने टाइम में कर सकता हूँ, अपने आप को टाइम देंगे, खुद अपने आप को टाइम बाउंडेड करेंगे, तब जाके ये सारी चीजें पॉसिबल। फिर आपकी उसके बाद आपका एक एम हो, डायरेक्शन हो, कि भैया मैंने ये ऐसे ऐसे इस प्लान पे, इस रास्ते पे निकलना है, चलना है, ऐसे करना है, मैंने किस किस को अपने साथ इस सफर का साथी बनाना, किस किस को मैंने अपने साथ लेके चलना है, तमाम तर आप एक दफा बैठ के प्लानिंग करें। देखिए आप लाइफ में कुछ भी करते हैं, आप में से हर शख्स कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा, लेकिन जरूरी नहीं मार्केटिंग है, मार्केटिंग के अलावा भी आपके डिफरेंट ड्रीम्स हो सकते हैं, और नो डाउट होंगे भी सही। अब आपने उनको अचीव करना है, तो साफ ज़ाहिर उनको अचीव करने के लिए आपके पास कोई ना कोई प्लेटफॉर्म का होना तो जरूरी है, कोई ना कोई तो आपने सोर्स ऑफ इनकम बनाना है ना। अगर आपके वो फाइनेंस के साथ रिलेट करते हैं आपके ड्रीम्स को, अगर आपने उसको मतलब फाइनेंस से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ करना है। तो आपके पास एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिस पे आप काम कर रहे हैं, इसको भी अगर आप प्लान करके नहीं चलते, इसको भी अगर आप कैलकुलेट करके नहीं चलते, या अपनी सक्सेस को, अपनी वर्किंग को, अपनी अर्निंग को, अपनी लर्निंग को, इन सब चीजों को अगर आप कैलकुलेट करके नहीं चलेंगे, तो आपको खुद ही नहीं पता होगा, आप अंधेरे में तीर चला रहे होंगे, आपको खुद ही अंदाजा नहीं होगा कि मेरा ये ख्वाब, मेरा ये ड्रीम, ये मेरा गोल कब अचीव होगा। अगर आप चीजों को अपनी मर्जी से ढालना चाहते हैं, तो फिर सब चीजों को प्लान करना होगा, और कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। ये हमें मुश्किल क्यों लगता है? ये हमें इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि हमने ऐसा कभी किया नहीं। आप में से जितने भी लोग आज इस ट्रेनिंग में मौजूद हैं, आप आज ही अपने साथ एक तहिया करें कि आज के बाद हमने जो कुछ भी करना है, उसके लिए हमने बाकायदा प्रॉपर प्लानिंग करनी, और जब प्लानिंग कर ली तो फिर उस पर अमल भी करना है। आप लोगों ने में से बहुत से लोगों ने एक मूवी देखी होगी, इंडियन एक मूवी है सलमान खान की, वो अक्सर एक डायलॉग बोलता है उस मूवी में, वो कहता है कि जब मैं अपने साथ कमिटमेंट कर लेता हूँ ना, फिर मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता। तो सेम लाइक दिस, आप लोग भी जब कमिटमेंट कर ले ना अपनी जात के साथ, फिर किसी की भी ना सुने, अपने आप की भी ना सुने, इवन के वो तो कहता है मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो आप लोग फिर किसी की भी ना सुने, एक दफा सेट करें सारी चीजें, और फिर आप देखेंगे तो सही कि कैसे आप वो कुछ भी जो भी आपने प्लान किया है अचीव करते हैं। इसी मार्केटिंग को ही देख लें, आप
اگر آپ کوئی بھی رینک اچیو کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو لکھیں, میں نے یہ رینک 3 مہینوں میں اچیو کرنا ہے, 6 مہینوں میں اچیو کرنا ہے. 6 مہینوں میں اچیو کرنا خالی لکھنا نہیں ہے, آپ کے پاس وہ تمام ڈیٹیل لکھی ہوئی ہونی چاہیے کہ میں 6 مہینوں میں کیسے کیسے اچیو کروں گا. یہ جو کیسے کیسے کا کوشچن آئے گا یہ آپ کا روڈ میپ ہوگا. اس کے لیے آپ نے جو پلاننگ کرنی ہے, جو بنانی ہے, جو ریٹرن میں لے کر آنی ہے, وہ آپ کی یہ پلاننگ ہو. پھر آپ زیرو سے سٹارٹ کریں کہ آپ نے ایک دن میں کتنی پریزنٹیشنز کرنی ہے, آپ نے ایک دن کے اندر کتنی انویٹیشنز کرنی ہے, کتنی پروسپیکٹنگ کرنی ہے, کتنے لوگوں کو آپ نے ایک دن اپنا سسٹم انٹروڈیوس کروانا ہے. اس طرح پھر آپ کیلکولیٹ کرتے جائیں, مطلب ڈے فرسٹ سے لے کے اینڈ تک 6 مہینوں تک کی آپ کے پاس پلاننگ ہو. پھر آپ اندازہ بھی لگائیں گے کہ یار میں نے یہ جو 1 ہفتہ گزرا ہے, 2 ہفتے گزرے, مہینہ گزرا ہے, میں کہاں پہ کھڑا ہوں, میں کتنا دور ہوں اپنے ٹارگیٹ سے, کتنا دور. اسی طرح زندگی میں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, کچھ بھی بننا چاہتے ہیں, اگر ٹرینر بننا چاہتے ہیں تو بھی آپ اپنے ساتھ پلاننگ کریں, اس کی بھی پلاننگ کریں. آپ نے ڈیلی بیس پہ پرفارم کرنا ہے. آپ سب بہتر چاہتے ہیں, پریکٹس کے بغیر تو کچھ بھی لائف میں پاسبل نہیں. اگر آپ ایز اے پریزنٹر آنا چاہتے ہیں, ایز اے ٹرینر آنا چاہتے ہیں, یہ آپ کا ڈریم ہے, پروفیشنل بننا چاہتے ہیں, تو پھر آپ ڈیلی کی ایکٹیویٹیز نوٹ کریں کہ آپ نے ڈیلی بیس پہ کتنے سیشنز کرنے ہیں, ڈیلی بیس پہ آپ نے کتنی دفعہ پرفارم کرنا ہے, ڈیلی بیس پہ آپ نے کتنے ٹاپک ریڈی کرنے ہیں اور اس پہ بولنا ہے. پھر آپ دیکھیں تو کیسے کیسے آپ آگے بڑھیں گے. یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ریٹن فارم میں, آپ ڈیلی بیس کی ایکٹیویٹیز لکھتے جائیں اور پھر اپنا 1 مہینے کے بعد رزلٹ میئر کریں. کیسے آپ کا رزلٹ چینج ہوتا ہے. میں کیوں آپ کو بار بار ریٹن فارم میں کہہ رہا ہوں اپنے ڈریمز, اپنے گول لکھنے کے لیے, اس کی وجہ کیا ہے. یہ جو ہمارا مائنڈ ہے نا, یہ مائنڈ, آپ کا جو مائنڈ ہے یہ سمجھتا ہے تصویری زبان ہے. یہ جو ریٹن میں چیزیں ہوتی ہیں, یہ جن چیزوں کو یہ دیکھتا ہے ان کے اوپر زیادہ بہتر طریقے سے عمل کرتا ہے. وہ چیزیں اس کے یہاں پہ سکیچ بنا جاتی ہیں, آپ کے مائنڈ میں سکیچ بن جاتا ہے ان چیزوں کا جو ریٹن فارم میں آپ کو نظر آتی ہے. کیونکہ یہ مطلب ویژوالائزیشن کرتا ہے آپ کا مائنڈ, یہ تصویری زبان سمجھتا ہے. تو یہ جو زبان سمجھتا ہے, آپ اس کے ساتھ اسی زبان میں کیوں نہیں بات کرتے, آپ اس کو اس طریقے سے کیوں نہیں ڈیل کرتے جیسے یہ چاہتا ہے. کیونکہ اسی نے تو آپ کو سب کچھ کر کے دینا ہے, اسی نے ہی تو آپ کو لائف میں آگے بڑھانا ہے. اس کے بغیر بھی تو آپ بھی تو کچھ نہیں ہے نا. جب آپ اس کے بغیر کچھ نہیں ہے تو اس کو ویسے ہی ٹریٹ کریں نا جیسے یہ چاہتا ہے, اور یہ بڑی آسانی سے سمجھ جاتا ہے, اور یہ بڑی آسانی سے ڈیل ہو جاتا ہے. صرف آپ یہ اس کو سمجھ جائیں کہ اپنے مائنڈ کو ہم نے کیسے یوٹیلائز کرنا ہے. ہمارے یہاں پرابلم کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں سوچوں کا سمندر ہوتا ہے. یہاں پہ آپ کبھی ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں, 1-2 منٹ کے لیے خاموش ہو کے بیٹھیں, اتنی سوچیں آپ کے مائنڈ میں آنا شروع ہو جائیں گی, آپ کہیں گے یہ کیا ہے. چلتے پھرتے شاید ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. آپ کبھی بالکل خاموش ہو کے بیٹھیں اور پھر اس کو نوٹ کریں, یہ کرتا کیا ہے, یہ کیسے آپ کو الجھاتا ہے. فضول سے فضول تر خیال آئیں گے آپ کے مائنڈ میں, فضول سے فضول باتیں آپ کے مائنڈ میں لہرائیں گی, آپ کے مائنڈ میں گھومیں گی, آپ کے مائنڈ میں چیٹرنگ ہوتی رہتی ہے باقاعدہ. یہ نوٹ ہم نے کبھی نہیں کیا. چیٹرنگ نہیں وہ جیسے کوئی ایسے ہی اکیلے میں بیٹھ کے ایسے ہی آپ مائنڈ میں بول رہے ہوتے ہیں, یا کوئی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایسے ہی اکیلے میں بیٹھ کے ایسے ہلکا ہلکا بالکل دھیمی آواز میں بول رہے ہوتے ہیں, اس کو چیٹرنگ کہا جاتا ہے. تو آپ کے مائنڈ میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا, آپ میں سے بہت سے لوگ یہاں پہ موجود ہیں جن کا یہ ایکسپیرینس ہوگا, یہ ایکسپیریمنٹ ہوگا کہ کوئی بھی بات ہو آپ کے مائنڈ میں سوال بھی اس کا خود ہی پیدا ہوتا ہے اور مائنڈ میں جواب بھی خود ہی پیدا ہو رہا ہوتا ہے. کبھی ایسا نوٹ کیا؟ مجھے 100% یقین ہے, شور شارٹ ہے, ایسا بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا. مائنڈ میں خود ہی سوال بنا رہے ہیں, خود ہی جواب دے. یہ کیا ہے, یہ چیٹنگ ہے. اس کا فائدہ کیا ہے, اپنے من میں خود ہی سوچی جا رہے ہیں, خود ہی بولی جا رہے ہیں, خود ہی سوال کیے جا رہے ہیں, خود ہی جواب دیے جا رہے ہیں. یہ ایک تو ٹائم ویسٹ ہے. ٹائم ویسٹ کے علاوہ آپ کے مائنڈ نے جو انرجیز پروڈیوس کرنی تھی وہ نہیں کر رہا ہے.
इस वजह से हम क्यों हर टाइम थोड़े लेजी या सुस्त रहते हैं, एनर्जेटिक नहीं रहते। कुछ लोग बड़े एनर्जेटिक होते हैं, आपने देखा होगा, कुछ लोग बड़े लेजी है। ये भी एक्सपेरिमेंट होगा आप लोगों का फील्ड के अंदर, आपने सोशल सर्कल में देखा होगा। और ये आप कभी जज करके देख लेना, जो लोग एनर्जेटिक या एक्टिव रहते हैं ना, वो बड़े शातिर माइंड के होंगे, बड़े तेज तराज होंगे, बोलने करने में भी और हर मामले में आपको नजर आएंगे, क्योंकि उनके माइंड में चैटरिंग नहीं होती, उनका माइंड सही एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब जब देखें आपके अंदर एनर्जी होगी तो आप सब कुछ करेंगे ना। अब एक बंदा दो तीन दिन से भूखा है, वो बेचारा क्या करेगा, क्या गेम खेलेगा, क्या कोई काम करने को उसका दिल करेगा। वो एक बंदा अभी खाना खा के बिल्कुल फ्रेश हुआ, एनर्जेटिक है ना वो, और उसने अच्छी अच्छी चीजें खाई, तो अब उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो एक और लेवल की होगी। और एक बंदा जो बेचारा 3 दिन से भूखा बैठा है, उसकी एनर्जी तो फिर डाउन ही होगी ना, उसका कुछ करने को क्या दिल करेगा, वो सुस्त और लेजी नहीं होगा तो क्या होगा। सेम लाइक दैट, ये जो माइंड है आपका, यही आपको सुस्त बनाता है, यही आपको एनर्जेटिक बनाता है, यही आपको एक्टिव बनाता है, और यही आपको लेजी बनाता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। जो भी शख्स अगर एक्टिव बनना चाहता है, एनर्जेटिक, वो फिर इसको समझे, और ये जो जुबान समझता है इसको उसी जुबान में समझाए। फिर आप देखें तो सही आपकी लाइफ कैसे बदलती है। आप जिंदगी में कुछ भी करना चाहेंगे तो आप कैसे कर सकते हैं, आप खुद भी अंदाजा नहीं लगा सकते। फिर क्या कुछ कैसे कैसे होना शुरू हो जाएगा, ये आपको उस वक्त अंदाजा होगा। फिर ऑटोमेटिकली चीजें आती हैं, फिर ये बहुत एक्टिव होकर काम करता है। फिर आपके माइंड में कहां कहां से आइडियाज आ रहे हैं, कहां कहां से बातें आ रही हैं, आप खुद भी नहीं सोच सकते। ये ऑटो पे काम करता है। हमने इसको उलझाया होता है मुख्तलिफ चीजों में, फजूल चीजों में, जिनका कोई हमारी लाइफ में मकसद ही नहीं होता। और ये बेसिक पॉइंट है जिसको हम इग्नोर करते हैं, और हम में से बहुत सारे लोग ये जानते ही नहीं है कि भाई यार ये इस वजह से भी होता है। तो आप सबसे पहले जो है अपने आप को एनर्जेटिक बनाएं। एनर्जेटिक होंगे तो तब आप ये सब कुछ कर पाए। और उसके लिए आपने जो कुछ भी करना है रिटर्न फॉर्म में लेकर आए। रिटर्न फॉर्म में लेकर आएंगे, आप जब लिख रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो आपके माइंड में उसका एक स्केच बन रहा होगा। और फिर उसके बाद अपने माइंड को मुख्तलिफ और फजूल सोचों से आजाद कर, फजूल किस्म के जो ख्यालात हमारे माइंड में चल रहे होते हैं, जिनका कोई सरोकार भी नहीं, जिनको सोच के हमें कुछ मिलता भी नहीं, टाइम वेस्ट के अलावा कुछ भी नहीं मिलता, और जो उसके साइड इफेक्ट्स है, जो ड्रॉबैक्स है, वो अलग है, जो हमारी लाइफ के ऊपर डायरेक्टली इफेक्टेड होते हैं, जो हमें हर प्लेटफॉर्म पे, हर फील्ड में नाकाम बनाते हैं, नाकारा करते हैं, या हमें वो एनर्जीज या एफिशिएंसीज दिखाने के काबिल नहीं छोड़, या हम उस लेवल की एनर्जीज नहीं दे पाते, या वो एफिशिएंसीज नहीं दिखा पाते। जो टैलेंट हमारे अंदर मौजूद होता है, जो कैपेबिलिटी हमारे अंदर मौजूद होती है, लेकिन वो हम दिखा नहीं पाते, उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। उसकी वजह क्या है, उसके साथ साथ एनर्जी चाहिए परफॉर्मेंस देने के लिए। देखिए अगर एक शख्स है, एक कोई प्लेयर है, कोई भी गेम करता है, बहुत अच्छा परफॉर्मर है, बहुत अच्छी गेम करता है, लेकिन वो 3-4 दिन से भूखा है, तो क्या वो परफॉर्मेंस दे पाएगा जो वो एनर्जेटिक होके देता है, जो वो नॉर्मल रूटीन में देता है, जो अपनी प्रॉपर एक्सरसाइज करके डाइट करके देता है? नहीं दे पाएगा। हालांकि उसके पास टेक्निक्स वही हैं, ट्रिक्स वही हैं, और उसके अंदर जो स्किल्स हैं वो भी सेम है, लेकिन वो परफॉर्मेंस उसकी नहीं रहेगी, उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, उसका ग्राफ डाउन हो जाएगा। सेम लाइक दैट, हमारे अंदर टैलेंट तो मौजूद होता है, हमारे अंदर कैपेबिलिटी तो मौजूद होती है, हमारे अंदर एफिशिएंसीज तो मौजूद होती है, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। उसकी वजह क्या है, हमारे अंदर उस लेवल की एनर्जीज नहीं होती। ये एक अलग टॉपिक है और बड़ा लेंथी टॉपिक है। आप कैसे अपनी एनर्जीज को बहाल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ये इंशाल्लाह फिर किसी दिन इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो उसमें हम ये सारी चीजें डिटेल से मजीद भी डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट सा मैं समराइज कर देता हूँ। लेकिन सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ में
अपने ड्रीम्स बना करके, जितने बड़े ड्रीम्स होंगे, जितनी आपकी बड़ी सोच होगी, आप लाइफ में उतनी ज्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं, आप लाइफ में उतना आगे बढ़ सकते हैं। हमेशा बड़े बड़े ख्वाब देखें, बड़ी बड़ी सोच रखें, बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन खाली बातें नहीं करनी, फिर उन पे अमल भी करना है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, बड़ा पुराना शेर है, सबने सुना होगा। तो अमल के बगैर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है लाइफ में। अगर आप कहें कि भाई यार हम खाली बैठ के प्लानिंग कर लें, बातें कर लें और काम ना करें, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपने ख्वाब देखने हैं तो फिर जाग के देखने हैं, तो मेहनत भी उसी लेवल की करनी है। वरना तो लोग सो के ख्वाब देखते हैं, ख्वाब देखने के बाद बस सुबह याद भी नहीं रहता उनको कि हमने क्या ख्वाब देखा है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। हम ख्वाब तो देख लेते हैं, नो डाउट जागते हुए भी देखते हैं, लेकिन हम कुछ अर्से के बाद अपने ही ख्वाब भूल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, इससे आपको ये नहीं अंदाजा होता कि जैसे हम नींद में हैं, वो सुना होगा कच्ची पक्की नींद में। कच्ची पक्की नींद में ना कुछ भी हो रहा हो ना, तो इंसान को कुछ खास याद नहीं रहता, कुछ याद होता है, कुछ भूल जाते हैं। तो हमने भी लाइफ में जो अपने ख्वाब बनाए होते हैं, जो ख्वाब सजाए होते हैं, वो कुछ अर्से के बाद ऐसा ऐसा मुरझाना शुरू हो जाते हैं, उन पर धुंधलाहट आ जाती है और वो जो है धुंधले होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? हम खुद ही कच्ची पक्की नींद में हैं, हम खुद भी मुकम्मल तौर पे हम लोग जागे हुए नहीं है, अवेयरनेस नहीं है हमारे अंदर। हम डेली बेस पे क्या कुछ कर रहे होते हैं। आप में से कोई भी एक शख्स मुझे ये बता सकता है कि 24 घंटों में उसने क्या क्या किया, क्या क्या बोला? आप में से कोई एक शख्स भी बता सकता है? हालांकि उसने सब कुछ खुद किया होगा, उसने सब कुछ खुद बोला होगा, अपनी ही बातें उसको याद नहीं होगी, अपने ही काम उसको याद नहीं होंगे। आप में से कई लोगों का एक्सपीरियंस होगा, कई लोग होते हैं उनको याद ही नहीं होता यार हमने कल शाम को क्या खाया था, कल क्या पहना था, कल किस किस से हम मिले, किस किस से हमारी क्या क्या बात हुई, किस किस ने हमें क्या कुछ कहा, नहीं याद होता यार। 24 घंटे हैं, 24 घंटों में भूल गए, तो पीछे कितनी लाइफ गुजार के आ रहे हैं। तो वो सब कुछ हमें कैसे याद होगा, कैसे याद रह सकता है? अगर हम फुल्ली तौर पे अगर हम जागे हुए हों, फुल्ली तौर पे अगर हम अवेयर हों, तो फिर कैसे हम भूल सकते हैं? कैसे हम भूल सकते हैं? और फिर हमारा एक बड़ा प्रॉब्लम, हम लिखते तो हैं कुछ नहीं, लिखने की तो जहमत ही नहीं करते ना भाई। वैसे तो हमें याद नहीं रहता, कम से कम लिख के तो रखे ना। जब उस पर नजर घुमाएंगे, नजर दौड़ाएंगे, तो कुछ तो याद आएगा ना यार, हाँ हमने ये भी कुछ सोचा था, हमने ये भी कुछ प्लान किया था। तो ये सब कुछ तभी पॉसिबल होगा जब हमें इन बेसिक चीजों की समझ आएगी। भाई हमने कैसे जागना है, हम जागे हुए नहीं है, सोए हुए हैं, नींद की हालत में। नींद मदहोशी नहीं होती, कच्ची पक्की नींद जो होती है, उस हालत में सबसे पहले तो अपने आप को झंझोड़ना है, अपने आप को जगाना है। जब आप फुल्ली तौर पे जाग जाएंगे ना, उसके बाद आपकी एफिशिएंसी कुछ और होगी। जैसे एक बंदा रात को सोया होता है ना, सुबह उठता है, जैसे ही आप उठते हैं, आपकी आंख खुलती है, तो आपकी क्या हालत होती है? और उठने के बाद थोड़ी देर के बाद अगर आप बाथ ले लेते हैं, गुस्ल कर लेते हैं, उसके बाद आप कितने फ्रेश हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं, नहीं एनर्जी महसूस होती है, नहीं होती? क्या डिफरेंस है? पहले भी तो भाई आप थे ना, अभी भी तो आप हैं। फर्क क्या हुआ? बीच में आपने जो बीच में एक डिफरेंस आया, वो ये आया कि आपने बाथ ले लिया, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस में, आपकी एनर्जी में रात और दिन का फर्क आ गया, डिफरेंस आ गया इतना बड़ा। इसी तरह हम जिस हालत में चल रहे हैं, अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो हमारी यही हालत है। जैसे आप बिल्कुल सुबह सुबह उठते हैं और उठते हुए आप बिल्कुल सुस्त होते हैं और आपकी एनर्जीज डाउन होती हैं और आप बिल्कुल लेजी होते हैं, और फिर उसके बाद ऐसे ऐसे आप फ्रेश होना शुरू हो जाते हैं। आप अगर
इन चीजों को समझ जाए, ये इंशाल्लाह हम किसी दिन इस टॉपिक के ऊपर अलग से ट्रेनिंग करेंगे कि हम कैसे अवेयर हो सकते हैं, कैसे एनर्जेटिक हो सकते हैं, कैसे ये जो नीम मदहोशी की हमारी हालत है इससे कैसे बाहर आ सकते हैं। भाई इससे बाहर आएंगे तो तभी हम एनर्जेटिक होंगे ना, तभी तो फिर हम किसी भी फील्ड में वो परफॉर्मेंस दे पाएंगे ना, तभी तो हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे, तभी तो हम अपने गोल पूरे कर पाएंगे। फिर जो हमने लाइफ का मकसद बनाया होगा या जो भी हमारा विजन होगा वो हम पूरा कर पाएंगे। अदरवाइज हम अपने यहाँ पे माइंड में तो बहुत कुछ सजाते हैं, यहाँ पे तो बहुत कुछ ख्यालात मतलब हमारे माइंड में आते हैं, या बहुत से हम ख्वाब सजाते हैं, बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं, या लाइफ में हम बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं या बहुत कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, लेकिन जब लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं फिर वहां पे हम जीरो हो जाते हैं, वहां पे हम फेल हो जाते हैं, वहां पे हम वो सब कुछ नहीं कर पाते जो हमने सोचा होता है, या जो आपने सोचा होता है उसके 50% आप परफॉर्मेंस देते हैं, या 20%, 40%, 10% देते हैं, या कुछ लोग तो बिल्कुल फेड अप हो जाते हैं, कुछ लोग तो बिल्कुल नाकाम हो जाते हैं। हमने कभी ये नहीं नोट किया हम क्यों नाकाम होते हैं, हम क्यों नहीं वो परफॉर्मेंस दे पा रहे जो हम चाह रहे हैं, जो हमने यहाँ पे सेट किया है वो हमारी क्यों नहीं परफॉर्मेंस आ रही, क्यों नहीं हम वो कर पा रहे, बाकी लोग कर पा रहे हमसे क्यों नहीं हो रहा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम ये सोचते नहीं, हम अपनी नाकामी के ऊपर गौर नहीं करते, उसके ऊपर रिसर्च नहीं करते, वहां पे क्वेश्चन मार्क ये नहीं लगाते कि हम नाकाम क्यों हुए। हम जस्ट सिर्फ ये देखते हैं कि बस ठीक है हम नाकाम हो गए। अच्छा उसके लिए हम हमारी देखे ना हमारी डायरेक्शन ही गलत है। जब हम नाकाम होते हैं तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट किस्म के जवाब पैदा करते हैं अपने आप को तसल्ली देने के लिए, या लोगों के सामने अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, अपने आप को टैलेंटेड साबित करने के लिए, या अपनी गलतियां छुपाने के लिए डिफरेंट किस्म के हम जवाब पेश करते हैं। भाई वो जवाब आप पेश करें ना करें, आप नाकाम तो हुए हैं ना, नुकसान तो हुआ है ना, फाइनेंशियली भी और टाइम का भी नुकसान हुआ है। अगर हम अपनी नाकामी को अच्छे तरीके से प्राउड माइंड होके और बिल्कुल खुश दिली से अगर एक्सेप्ट करते हैं, या जो भी हमने लाइफ गुजारी है उस लाइफ में अगर आज तक हम कुछ नहीं बन पाए, अगर हम आज तक कुछ नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, यहाँ पे जरा क्वेश्चन मार्क लगा के देखें, जरा उसके ऊपर रिसर्च करके देखें, माइंड लगा के देखें, सोच के देखें, वो तमाम चीजें लिख के देखें कि क्या वजह है हम नहीं हो पाए। भाई जो टाइम गुजर गया वो तो गुजर गया, फिर वो तमाम चीजें नोट करें और फिर अगला लाए अमल बनाए, अगली प्लानिंग बनाए, अगले जो ख्वाब हैं उनको पूरा करने के लिए फिर प्लानिंग बनाए, और फिर आप आसानी से बना पाए। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो ये होता है हम अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी गलती मानने के लिए हम अपने आप को इतनी लचक ही नहीं देते, हम इतनी कैपेसिटी यहाँ पे नहीं पैदा करते कि हम अपनी गलती मान सके। तो फिर हम कैसे बढ़ पाएंगे। जो शख्स अपनी गलती नहीं तस्लीम करता वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, और गलतियों के बगैर भी आप कामयाब नहीं हो सकते, ये याद रखिएगा। परफेक्ट जात तो है ही नहीं इस दुनिया में कोई, तो फिर कैसे हम कामयाब हो सकते हैं। भाई गलतियां तो हमने करनी है, ये तो कंफर्म है, ये मस्ट है, लेकिन फर्क होता है गलतियों में और बेवकूफियों में फर्क होता है, ब्लंडर्स में फर्क होता है, जानबूझ के की गई गलती में फर्क होता है, अनजाने में जो गलती होती है उसमें भी फर्क होता है। लेकिन जो गलती होती है आप उसको नोट करें, उसके अंदर इंप्रूवमेंट लाए। अगर आप इंप्रूवमेंट लेकर आए तो वो फिर आपकी गलती नहीं है, वो आपकी लर्निंग है। और जो शख्स अपनी गलती को तस्लीम नहीं करता तो वो कैसे लर्निंग कर सकता है। लर्निंग इज द मस्ट, लर्निंग के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है, अर्निंग लर्निंग के बगैर तो पॉसिबल भी नहीं है इस किसी भी प्लेटफॉर्म पे कामयाब होना। ये तो पहली सीढ़ी है, और पहली सीढ़ी पे हम नहीं चढ़ेंगे तो हम कैसे ये एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि हम उस बिल्डिंग पे चढ़ सकते हैं, या हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, या हम अगली सीढ़ी पे चढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है पॉसिबल। इसलिए
जो बेसिक्स हैं उनको जरूर हमने अपनाना है, उनको जरूर समझना है। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है, हमें बेसिक चीजों की समझ होना चाहिए। बेसिक चीजों को समझना हमारे लिए जरूरी है। अगर हम बेसिक चीजें ही नहीं समझेंगे तो अमल कैसे करेंगे? अमल नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो जो है आज हमने काफी चीजें बेसिक डिस्कस की हैं, तो आपने ये सारी चीजें नोट करनी है और कोशिश करना है, इन पे अमल करना है। अगर इन पे आप अमल करते हैं तो कंफर्म आप जो है कामयाब हो सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म पे मर्जी आप जाए, और जिसके जो मर्जी ड्रीम्स हो, छोटे हैं बड़े हैं, कंफर्म है वो जरूर अचीव हो सकते हैं। और दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल विच यू कैन डू, विच यू कैन थिंक। जो भी आपके माइंड में एक ख्याल अंगड़ाई लेता है तो वो जरूर पॉसिबल है, वो जरूर फिजिकल फॉर्म में आ सकता है, वो जरूर हो सकता है। अगर कुछ भी आपके माइंड में ख्याल आ जाए, क्योंकि ख्याल हमेशा आता भी वही है जो पॉसिबल हो, जो हो सकता हो, जिसकी आपके अंदर कैपेसिटी हो। अगर आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है तो आपके माइंड में वो ख्याल ही नहीं आएगा। आपके माइंड में कभी ये ख्याल आए कि मैं चांद पे जाऊं, मैं चांद गाड़ी बनाऊं? भाई वो कैपेसिटी नहीं। जिसके अंदर कैपेसिटी थी उसके माइंड में ख्याल आया और उसने वो सब कुछ कर दिखाया। हमारे माइंड में जो जो भी ख्याल आएंगे हमारे लेवल के, हमारी कैपेसिटी के आएंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे माइंड में जो भी ख्याल आ रहा है तो वो हम कर सकते हैं। अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम ये जहमत नहीं करते कि उसके ऊपर जरा बैठ के सोचे कि हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ख्याल भी एक जानदार चीज है। जब आपके माइंड में आता है और आप उस पर अमल नहीं करते, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, या उसके लिए कुछ आप फिजिकली स्टेप्स नहीं लेते, वो ख्याल उठ के किसी और के माइंड में चला जाता है, वो ख्याल किसी और की प्रॉपर्टी बन जाता है, वो ख्याल किसी और की मालकियत बन जाता है, और वो कोई और उसको प्रैक्टिकल जो है फॉर्म या शेप दे देता है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका ये एक्सपीरियंस होगा कि उनके माइंड में कुछ ऐसा ख्याल आया होगा कि यार मैं ये करूं, जब मैं ये काम करूंगा, वो थोड़ा डिले कर जाते हैं और कुछ टाइम के बाद, कुछ अरसे के बाद वो देखते हैं कि वही काम कोई और कर रहा है। इसका मतलब ये है जो आपके माइंड में ख्याल आया, आपने उसको अमली जामा नहीं पहनाया तो किसी और ने पहना दिया। सो सिंपल। इसलिए जो ख्वाब आपने रखे हैं, सजाए हैं, देखे हैं, उन पे अमल करना है। अमल कैसे करना है? ये बेसिक चीजों को फॉलो करेंगे तो आप जो है उनको अचीव भी कर पाएंगे और आपका हर ख्वाब भी पूरा होगा। ये गारंटी है, ये कंफर्म है, और ये कुदरत का कानून भी है, यूनिवर्सल लॉ है। लेकिन उसके लिए आपके पास प्लानिंग भी होना चाहिए, प्लानिंग होना भी जरूरी है, और उस लेवल की एफर्ट, मेहनत भी करना जरूरी है जिस लेवल के आपके ख्वाब हैं। तो अब आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि आप में से जिन जिन लोगों के जो जो भी ख्वाब हैं वो उनको कैसे पूरा कर सकते हैं, या उनके कितने बड़े ख्वाब हैं। जितने बड़े ख्वाब हैं तो उन्होंने उस लेवल की प्लानिंग करनी है, उन्होंने उस लेवल की मेहनत करनी है, तो जरूर आप सबके वो ख्वाब पूरे हो सकते हैं। तो आज के सेशन के हवाले से अगर आप में से किसी भी मेंबर का, पार्टिसिपेंट का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं।